test. It seems it has been sufficient. It has been out of date for the students, and the students just become nervous to see huge material has been taught, and how can they manage all of these topics to prepare and to obtain and score our marks in the end to this month, then to celebrate their introductions with parents, and facing some difficult areas from English. But I think it's not so. It's not difficult. It's not uneasy areas as far as the teaching of these small topics, because they were already taught there, in first year. Mostly all of them are taught. So people like you who are senior don't have any panic-like situation to worry more about the taste, about the preparation of these topics. It's not actually the big man. However, we are going to conclude the rest of the important features of question take today, and this will be the last. And then from tomorrow onwards, we'll also try to add something new in our syllabus for general test, right? Like paragraph comprehension, lesson, because these things have also some tools in their test. So, tools then discuss. Okay, and then today we are going to wind up this session of grammar, and you are going to get rid of this one. Even it seems to be interesting or easier one, So students cry and they complain that grammar is really dry, boring, and annoying area for them to get rid of it speedily, because it sometimes becomes boredom and headache for them to stay more on the one topic. And those were the delightful days in my life, in my teaching career. And mostly students expect and desire, sir, we should be given turn for presentations, for our expressive thoughts. Like such, ingredients were the part of my lecture. Unluckily or regretfully, today, all of these things have gone and vanished, and no more such demand and desire is seen from student side. And they just stay silent, calm, and well disciplined for the learning, while the teacher is seen to be very busy like an athletic player on the field. Right? Let's come to now resume the rest of the structures from question take, which you might have already got there in last first year. Can you remind me? Could you remind me? Last day's points from question take. कल क्या हमने क्वेश्चन टेक में पढ़ा था? Somebody, someone वाली स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी है? ठीक है, तो देखो अब आज हम क्वेश्चन टेक में जो ऐड करते हैं, इजाफा करते हैं आपकी नॉलेज में, वो ये कि अगर ऐसे 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर ऐसे 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी समवन, एवरीवन, ठीक है, और एनीवन। पहली बात मैं आपको बता दूं कि एनी जो वर्ड है ये नेगेटिव नहीं है। हम ये समझते हैं कि एनी जो है वो नेगेटिव है, और क्वेश्चन टैग में जब एनी आ जाए तो हम उसे नेगेटिव समझ के और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई बार कसम नहीं उठाई है, वैसे मैंने बता दिया है कई बार कि एनी जो है ना वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड है। तो समवन, एवरीवन, एनीवन, और इसमें लास्ट है नो वन। नो वन, देखो नो वन, नो वन, ये हो गया 4। ऐसे 4 और हैं। समवन हो गया ना, तो देखो, हाँ, हमने ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ये। अब 4 देखो ये हो गए, जैसे समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ठीक है, और नोबडी। ये हो गए। देखो जब सेंटेंस का ये वाले अल्फाज सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेंगे तो क्वेश्चन टैग में देखो ये सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया है कि जो सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का होगा
वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा? वो पर्सनल। ये पर्सनल नहीं है। आपको कल परसों मैंने लिखवाए होंगे, ऐसा कोई पर्सनल प्रोनाउन में मैंने वर्ड नहीं लिखा होगा। तो इनका जो पर्सनल प्रोनाउन बनेगा ना क्वेश्चन टैग में, वो होगा दे, प्लूरल, सिंगुलर नहीं होगा। ठीक है, इनका जो यानी क्वेश्चन टैग में आप सब्जेक्ट देंगे, इनको जो वापस सब्जेक्ट देंगे या इनको जो पर्सनल प्रोनाउन वापस देंगे वो दे आप देंगे। इसका मतलब हुआ कि इधर आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो वो प्लूरल लगाएंगे आप उसके साथ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन का ये, इधर सिंगुलर समबडी इज हो सकता है, लेकिन जब इधर आएगा तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर हम इतना बनाते हैं कि समवन इज, पूरा जुमला नहीं बनाता, क्वेश्चन टैग तो बन जाएगा समवन इज, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? आरंट दे। देखो मतलब ये हो जाएगा, देखो इस तरीके से। तो ये मैं बता रहा हूं कि अब हमारा सब्जेक्ट जो है समवन है, सब्जेक्ट समवन है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन है नहीं, तो पर्सनल प्रोनाउन में हम दे लिखेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में दे लिखेंगे। अब इधर इज है, लेकिन दे तो इज नहीं कैरी करता, दे तो प्लूरल है, वो तो आर कैरी करेगा। और फिर ये हमारा पॉजिटिव में, फिर ये देखो आपको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। ये होता है, अब डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के टेंस के ऊपर, कि जैसा टेंस होगा वैसा इधर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और कुछ नहीं है। अब थ्रू आउट जितने भी स्ट्रक्चर इनसे बनेंगी वो सब दे कैरी करें। अब दे क्यों आया, ही क्यों नहीं आया, या शी क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट माना हिडन, हिडन माना जिसका कुछ पता ना हो कि कौन माना हो सकता है। दो माना समवन, अब समवन माना ही और शी, माना दोनों आ सकते हैं इसमें, कि भाई समवन इज, हम बोले भाई समवन इज क्राइंग ऑन द रोड, हमें पता नहीं है कौन है ये, वो ही है या शी। आप बोले हमें पता है, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ही वैसे माना वो हमने जो जुमले बनाए थे जब हमने अपने प्रोनाउन वाली स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी थी, वन ऑफ देम या समवन के साथ और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो ही हमने लगाया, लेकिन कई जगहों पर आप देखेंगे मैंने तब भी शायद आपको हल्का सा हिंट दिया होगा या बताया होगा कि इनके साथ हम दे भी लगाए। और मैंने आपको ये कहा होगा कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश आपने बुक नहीं पढ़ा होगा, आपसे पहले साल वाला जो पुराना बुक है फर्स्ट ईयर का, उसका एक लेसन है, उस लेसन में इन प्रोनाउंस का यूज है। उनके लिए क्वेश्चन टैग की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे डिक्लेरेटिव वगैरह जो सेंटेंसेस है ना, उनमें एक बार अगर इनमें से कोई आ गया है तो वापस उनके लिए पर्सनल प्रोनाउन दे आया, ही नहीं आया। ठीक है, अब टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको माना कंसीडर करते हैं कि भाई ठीक है ही इनको दे दो, माना मेल को कंसीडर करते हैं कि ही उनको दे दो, वरना माना ज्यादा जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन टैग में तो कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, ही या शी का बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन टैग में माना 100% ये होता है, और कोई नहीं होता। अच्छा, कुछ जो है वो जब लिखते हैं तो ये आता है तो ही और शी करके देते हैं इसको, माना कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कुछ इसके लिए वही मैंने बात की कि दे भी लिखते हैं। बाकी कोई एक इंडिविजुअल सेंटेंस आता है तो उसके लिए ये ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये क्वेश्चन टैग में हम दे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसके आपको बता रहा हूं ना कि इसके पीछे रीजन क्या है। इसका मतलब ये हमें पता नहीं है कि कौन माना वो एक्शन कर रहा है, ही है या शी है, माना दोनों हो सकते हैं पॉसिबल, तो इसीलिए हमने इसको प्लूरल कर दिया। दे में अब दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो प्लीज ऐसी स्ट्रक्चर रहेगी। बाकी क्वेश्चन टैग का फॉर्म तो सेम है जो हमने कल किए, वो सब अब डिपेंड करता है टेंस आपको पहचानना है और उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे देखो सेंटेंस है, नोबडी क्राइड, देखो नोबडी क्राइड, अब ऐसा से आपको मिल गया। अब भाई ऑप्शन से तो मन आसान हो जाता है। अब इधर एक आया ये डिड ही, बी आया डिडंट दे, सी आया डिड दे,
हमने पहचाना ये, क्योंकि ये इसको देखकर मैं डिड लगा रहा हूँ। आंख में कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पता नहीं डिड कहाँ से आया है, इधर तो नजर नहीं आ रहा। जब आपको नजर नहीं आता ना कोई हेल्पिंग वर्ब, तो समझ लो इन तीनों में से कोई एक है। जब सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए तो फिर वो वर्ब कौन सा हो सकता है? वो ये या ये तीन होंगे, बस कोई और नहीं हो सकता जब हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए। ये होगा प्रेजेंट टेंस के तो ऊपर वाले, ये होंगे पास्ट। तो अब पढ़ा है नोबडी क्राइड, डिड दे, और लास्ट है हमारा डिड ही और शी, हमने दिया, सारे दे दिए। तो अब हमने देखो आपको बता दिया सी होगा, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है, नोबडी लिखा हुआ, तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट ही नेगेटिव है, तो जुमले का मतलब ही नेगेटिव है, तो ये डिड दे होगा। ठीक है ना? तो ये बातें आपको इसमें रखनी पड़ेंगी। इसमें इंपॉर्टेंट बात सबसे बस ये, और इसको वर्ब देना है प्लूरल। ठीक है ना? अब इधर जो पास्ट में प्लूरल, डिड तो प्लूरल सिंगुलर की बात ही नहीं है, आपने दे दिया। अब आप जो मर्जी बड़े माने स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। देखो अब पढ़ा एनीवन कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ या हिज थॉट्स या क्या। ठीक है, एनीवन कैन प्रेजेंट। तो अब आप देखो, आपके पास ऑप्शन में एक देता हूं, कैन दे, या दूसरा है कांट दे। ಈ ಜೀತನ್ನ ಅಂಗಡ ಅಂದ ಈ ಜೀತ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈ ಗಿಡ ಖರಾಬನ್ ಕಿಡಿಗಳ ಮಾನಜ ಈ ವಾತನ ವೆಂದಂದಾಗಿ मुझे बात में बट्टे दबा गया, गाले ने बात करते करते, ये छोटे हैं ना बिल्कुल, तो उनका वो नजर नहीं आते, माने लेक्चर देते देते जज्बाती हो जाते हैं, तो कुछ माना देखने में नहीं आता। तो मैं इनको फिर पता है, मैं को इनको ठीक करता हूँ, मैं इनको इधर ही हाँ काबू कर लेते, फिर बाद में। तो ये अभी है, मुझे इससे डर लग रहा है कि ये किसी वक्त भी कैन एंटर, ये आ रहा है देखो। अच्छा, तो एनीवन कैन प्रेजेंट। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन भाई? ये सेकंड वाला है, क्योंकि ये हो गया आपका पॉजिटिव, आवाज ना करे समझे, तो ये पॉजिटिव हमें नेगेटिव सब्जेक्ट हमने पहले निकाल लिया है कि वो प्लूरल होगा, सिंगुलर इसका नहीं होगा। ये हो गया मतलब इसका। अब देखो ऐसे चार और इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ऐसे चार और इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, वो कौन से? वो है समथिंग, ठीक है, और एवरीथिंग, और एनीथिंग, एंड ए नथिंग। देखो ये चार और है, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। अब इनका जो सब्जेक्ट होगा वो, देखो इनका जो होगा वो इट होगा, क्योंकि ये पर्सन को शो नहीं कर रहे, थिंग, थिंग जो है। अब थिंग में पता है, हमें थिंग का लगता है कि मार्कर थिंग है या बोर्ड थिंग है, भाई जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है जो हमें नजर नहीं आती वो भी थिंग है। ठीक है, लाइफ को थिंग बोलते हैं, ठीक है ना, या ट्रूथ को हम थिंग बोलते हैं, लाई को हम थिंग बोलते हैं, भले कोई एब्स्ट्रैक्ट हो ना तो वो भी थिंग में इंक्लूड है। तो उनका जो सब्जेक्ट होगा वो इट होगा, इनका इट होगा। जैसे देखो सेंटेंस है, नथिंग वरीज मी, देखो ये, लेकिन ये इंसेक्ट, नथिंग वरीज मी। हाँ, अब आपके पास देखो ऑप्शन है इसके, इसके ऑप्शन है आर दे,
is it, do they या do it, or does it। अब देखो, nothing worries me, are they, is it, do it, does it। इधर देखो, ये देखना है तो वर्ब पढ़ाइए, और ये V1 है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू और डस। तो ये इट है बस, इसका इट के साथ हम माना लगेगा वही, माना डस इस्तेमाल होगा तो ये। और दूसरी बात, ये नेगेटिव है, नथिंग लिखा हुआ, नथिंग वरीज मी, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव में हो जाएगा क्वेश्चन टेक। आप पूछे, आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, प्लीज कहीं पे आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप पूछे क्या हो रहा है सर, हमें कुछ पता नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो आप पूछे। सब्जेक्ट क्या है, खुद नेगेटिव है, और ये जितने भी अल्फाज हैं उनका वर्ड क्या है, कीवर्ड हमने निकाला इट। अब क्वेश्चन टैग में इनके सिवा इनके लिए कोई नहीं होगा वर्ड। भले मैं ऐसा भी लिखूं ना, ई ऑप्शन में अगर ऐसा लिखूं कि डज नथिंग या डज समथिंग, अगर मैं इसका ये भी बना लूं डज समथिंग, ई ऑप्शन बना लिया, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन चाहिए, तो ये तो पर्सनल नहीं है, तो पर्सनल प्रोनाउन रखेंगे जो कि इट है। ओके, आगे देखें। एवरीथिंग इज, देखो, एवरीथिंग इज हार्डली पॉसिबल। अब हमें पता नहीं है कि इधर जो सेंटेंस होना चाहिए वो ये जो लिखा हुआ है, ये पता नहीं हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, पता नहीं किस स्ट्रक्चर में। एवरीथिंग इज हार्डली पॉसिबल, इज इट, ठीक है, इसका माना आपने कर लिया इज इट, सही कर लिया। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको देखकर आपने इसको हार्डली, ये नेगेटिव है, तो सिर्फ हार्डली नहीं है, देखो लिटिल वर्ड भी आ सकता है, सेल्डम भी आ सकता है, स्कार्सली वगैरह वो भी होता है, फ्यू FEW वो आता है, तो भी माना ये नेगेटिव हो जाएंगे, आप उनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गए आपके थिंग वाले या समवन समबडी वाले। माना क्वेश्चन, एक बात देखो, क्वेश्चन टे का बेसिक जो फॉर्म है ना, वो तो बुनियादी सेम है, कोई बात जो हमने फर्स्ट डे भी पढ़ी। अब हमें सिर्फ पहचानने सब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्स कि वो कौन सी हो सकती है, बाकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो सेम हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखो, एक ये स्ट्रक्चर देखो, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देखो इसका क्वेश्चन है, अब हमने दिस इज अ बुक या दीज आर बुक्स, उनमें देखो हमने दे या इट जो है वो इंक्लूड किया एज अ पर्सनल प्रोनाउन। अब ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, जिस एक्सेप्शन में आप देखो क्वेश्चन टेक जो है, इस क्वेश्चन टेक के अंदर हमें जो है ना इसी कोई माना क्वेश्चन टेक में रखना पड़ेगा, ये माना इसका अपोजिट करके रखना पड़ेगा। कहने का मकसद देयर जो है देयर आएगा उधर, जैसे देयर इज अ बुक है ना, हाँ, इजंट देयर, तो ये पॉजिटिव में है, तो इसमें माना देयर वाली जो स्ट्रक्चर होगी तो देयर वाली सेम रहेगी। देयर ऐसा नहीं है दिस की तरह इट में चेंज हो जाएगा, नहीं, इधर पर्सनल प्रोनाउन नहीं रखेंगे, देयर पर्सनल नहीं है, ठीक है, देयर वापस देयर वाली स्ट्रक्चर सेम वापस इधर रखेंगे। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो हम इसका बनाएंगे इजंट देयर, ये क्वेश्चन टेक होता है, देयर वापस आएगा, देयर हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक और देते हैं, देखो आवाज जल्दी करें।
देयर बी नो वन, तो इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा? वुडंट, वुड देयर। ठीक है, तो ये सही है या वुडंट देयर वाला सही है? वुड देयर सही है बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर सही है क्योंकि नो लिखा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव है। अब ये शायद मैंने कल बताया था आपको, तो देखो इसमें हेड भी होता है ये और वुड भी होता है, लेकिन हमने इसको देखकर बी को देखकर, अगर बी न होता ना, बी डबल ई तो हम इसको हेड समझते, ये तो बी पड़ा है तो मॉडल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात उसी जैन। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स आ जाते हैं, पता नहीं पड़ता, वर्ब भी आते हैं सेंटेंस भी आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आई थिंक, आई थिंक यू विल बी, आई थिंक यू विल बी सिलेक्टेड। बोलेंगे सर कल तो आप नहीं, कुछ दूसरी बात कर रहे थे हमारे बारे में। कल कौन सी मैंने दूसरी बात की आपके बारे में, बताओ। मैंने कहा मेहनत करो, मैंने कहा अपने मकसद पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस, बस, और कुछ नहीं। आप ध्यान से पढ़ो तो सही, ठीक है ना, फिर आप देखना कि आपको किस तरीके से अल्लाह पाक नवाजता है। उसकी ब्लेसिंग्स थोड़ी कोई है, आप काउंट करके बैठे हैं एक एक बस, वो तो पता नहीं। अगर वो देने पे आए ना तो आप माना तस्वर नहीं कर सकते। अब देखो हमें जितना अल्लाह पाक देखो दे रहा है, रोजाना कितना देता है, खाने बुद्धन में फिर मैंने ध्यान दो। अल्लाह, पहले मना कोई सुनने के लिए कंसंट्रेशन नहीं थी, मैंने कहा हमें रोजाना इतने मिलते हैं, सब हमारी तरफ तवज्जो देने लगे। अच्छा, अगर माना अब देखो हमें पता नहीं है, आई थिंक यू विल बी सिलेक्टेड, माना एक ये पढ़ा है, अब ये पढ़ा है, अब पता नहीं क्वेश्चन टेक कहां से निकाले, यानी डोंट आई करें या वोंट यू करें, तो नहीं, जो फर्स्ट होगा ना ये कंसीडर होगा। जो फर्स्ट होगा, जब ऐसा सेंटेंस कोई भी हो, हमेशा फर्स्ट वाले को कंसीडर करें क्वेश्चन टेक के लिए, सवाल के लिए। आई थिंक यू विल बी सिलेक्टेड, ठीक है ना, तो आई थिंक माना मैं सोच रहा हूँ ये प्रेजेंट टेंस है, तो आप इसका क्वेश्चन टेक करेंगे डोंट आई, ये होगा। ऐसे सेंटेंस भी ये ज़हन में रखना, सेकंड नहीं होगा, ये फर्स्ट से ही होगा, क्वेश्चन फर्स्ट से होगा, सेकंड से थोड़ी होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसका, इसका के मेरे ख्याल में आपकी सिलेक्शन हो जाए, या मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ आप सिलेक्ट हो जाए, तो ये तो कंफर्मेशन है ना। क्वेश्चन टेक क्यों किया जाता है, क्या मैं नहीं सोचता? हाँ ना, क्या मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता, माना ये होता है ना, तो उसको माना वेरीफाई करने के लिए हम करते हैं। नहीं तो वो सेकंड का नहीं, वो तो हम सिंधी या उर्दू में ऐसा करते हैं कि दूसरे पे ही फोकस कर रहे हैं, फर्स्ट को हमने छोड़ दिया। लेकिन क्वेश्चन जो हम निकालेंगे, सेंटेंस हमारा फर्स्ट है, ये तो फिर सेकंड सेंटेंस हो गया। ये पता है कैसे हुआ, सुनो, ये एक्चुअली माना भले हमने कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं दिया है, ये इस तरीके से, आई थिंक दैट यू विल बी सिलेक्टेड, आई थिंक दैट यू विल बी सिलेक्टेड, ना ये एक्चुअली हमने लगाया नहीं है दैट वगैरह, वो होगा माना अंडरस्टूड, ये तो सेंटेंस तो वो होगा, ये तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्वेश्चन किससे निकलेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज से। अब सर को समझ में आई ये बात, क्वेश्चन जो निकलेगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से, ना कि डिपेंडेंट क्लॉज से। तो ये दैट इसके साथ है, कई जगहों पर ऐसे फिजिकली अल्फाज जाहिर नहीं होते, मतलब आ जाता है, फिर लगन जो है फर्ज नहीं होता, आपको भी पता पड़ जाता है, और इधर सेंटेंस का मसला नहीं होता। आने जंग आसान की खबर पे दी, कितने पे वहां खबर, तो इसीलिए हम फर्स्ट से जो निकाल। अच्छा, मैं एक और बात कर रहा था आपसे, वो ये कि अभी सेंटेंस में माना एक से जो है ना ज्यादा वर्ब्स सेंटेंस में आ जाते हैं, माना दो वर्ब्स आ जाते हैं, तीन वर्ब्स, चार वर्ब्स, वो भी होता है। जैसे देखो, यू शुड हैव
अब देखो लाइन देखो वर्ब्स की, बीन टॉट, यू शुड हैव बीन टॉट। राइटिंग कैसी है आज? ये तो जब जब आप नहीं बोलते मैं पूछता हूँ तब मुझे लगता है राइटिंग अच्छी है मेरी, क्योंकि इंसान कभी मतलब किसी की दूसरे की वस्तु की तारीफ नहीं करेगा। तो अभी आप खामोश हो गए ना, इसका मतलब राइटिंग अच्छी है। यू शुड हैव बीन टॉट इंग्लिश। अब आपके पास देखो वर्ब, एक वर्ब ये पढ़ा है, दूसरा वर्ब ये पढ़ा है, तीसरा वर्ब ये पढ़ा है, चौथा वर्ब पढ़ा है। तो हम क्वेश्चन किस वर्ब से बनाए? हमेशा फर्स्ट वर्ब से क्वेश्चन या नेगेटिव बनाया जाता है। समझ लो जब भी क्वेश्चन या नेगेटिव स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ना, मतलब हमें जो है वो वर्ब लेना है वो फर्स्ट, मतलब ये नहीं कि एल या बीन या कोई ऐसा नहीं। तो ये अब आपका होगा कि अफर्मेटिव है ना, तो आप इसका क्या करेंगे? शुडेंट, शुडेंट यू, ये हो जाएगा क्वेश्चन। जो पढ़ा है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो हम इस्तेमाल करें। तो अब इतना आज काफी है। अब मतलब ग्रामर में जीटी का सिलेबस ये जो पढ़ाया है आज तक। अच्छा बी वर्ब, जो बी के वर्ब्स होते हैं ना, मतलब सिर्फ बी के इज एम आर वाज वर्ब, ये जो बी के वर्ब्स हैं ये आपको दो फंक्शंस देते हैं। मतलब एक्चुअली ये मेन वर्ब भी है, लेकिन क्वेश्चन और नेगेटिव जब हम करते हैं तो भी इनसे ही करते हैं, इनके लिए कोई दूसरा वर्ब नहीं होता। मतलब इज आ गया तो हम क्वेश्चन के लिए या नेगेटिव के लिए इसके लिए हम डज लगा लें या डू लगा लें कोई दूसरा वर्ब, जैसे हम हेड के लिए लगाते हैं, इज के लिए हेड के लिए लगाते हैं। लेकिन ये वो वर्ब्स हैं जो आपके सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, साथ साथ ये मेन वर्ब भी है। जैसे मेन वर्ब कैसे हुए भाई, शी इज अ स्टूडेंट। अब जाहिर है इसमें वर्ब भी एक है जो कि इज ए मेन वर्ब है। अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो इज शी अ स्टूडेंट, तो ये खुद से देखो क्वेश्चन, ये नेगेटिव, तो ये ऐसे यूज होते हैं, ये सिर्फ बी वर्ब्स में ऐसा होता है। ठीक है, बाकी हम कोई अलग डू वाले भी ऐसे हो सकते हैं, डू वाले भी ऐसे हो सकते हैं खुद, शी डज वर्क। तो आप अगर इसको नेगेटिव करते हैं या सवालिया तो क्या करेंगे? डज शी डू वर्क, देखो ऐसा हो जाता है, इनमें होता है ये। तो उसमें भी फर्स्ट कैरी फर्स्ट क्वेश्चन टिक सेम होगा। देखो माना परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, जैसे मैं बोलूं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 30 मिनट्स, आई हैव बीन टीचिंग, तो पहला वर्ब कौन सा है? हैव, हैवंट आई। फिर देखो आई हैव टॉट, आई हैव टॉट फॉर 30 मिनट्स, हैवंट आई। बस इन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट पूछी है कि परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों का क्वेश्चन टेक सेम होगा, माने हेल्पिंग वर्ब सेम है दोनों का, फर्स्ट वर्ब एक ही है। ठीक है, तो अब इन नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन जो बनाते हैं वो सिर्फ एक वर्ब से बनाते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो सिर्फ हर वक्त एक ही वर्ब पे आते हैं। मतलब फिर तो मैं जब दूसरा वर्ब हमने लिया ना तो फिर हमने मेन वर्ब भी हम उसके साथ रख लें, तो वो नहीं लेंगे, सिर्फ जो फर्स्ट वर्ब होगा वो, सेकेंड वर्ब फिर भी मेन वर्ब हो जाएगा इसका। ठीक है, बीन मना थर्ड फॉर्म हो गया, बी का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, तो वो तो थर्ड फॉर्म हो गया, हेल्पिंग वर्ब तरीका। इसका इंपेरेटिव का क्वेश्चन टैग बनेगा। हाँ देखो इंपेरेटिव का जो क्वेश्चन टैग होगा वो हम वांट यू या विल यू या वुड यू इनसे हम बनाएंगे, ये पोलाइट स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। जो नेगेटिव है उसका विल यू होगा और बाकियों का जो होगा वो वांट यू या वुड यू आप कर सकते हैं। अभी कल कर लेंगे, ठीक है, कल में ये अलग अगर आप बोलेंगे तो इंपेरेटिव हम कल सीख लेंगे। इनका होगा वांट, वुड या विल, तीन वर्ड्स है सिर्फ। imperative।
कल रिमाइंड करवाना मुझे।